Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss interference of light. Very important topic. In this video we describe Young's double slit experiment, conditions for sustained interference, what are the coherent sources, and the conditions for constructive and destructive interference. So start with interference of light. What is the interference of light? When we say we have a source of light in the form of wave nature, जैसे हम बात करते हैं कि एक पानी है, पानी में हम कोई पत्थर मारते हैं तो वेव्स उस पर कैसे बनती। सिमिलरली जब एक सोर्स लाइट डिस्ट्रीब्यूट करता है एक मीडियम में तो हम अगर मानते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट जब एक मीडियम में दो सोर्स आ जाते हैं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है. सो नॉन यूनिफॉर्म distribution of light when two or more than two sources gives the light waves in the medium. That non-uniform distribution of light is called the interference of light. When the interference take place, मीडियम में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, यहाँ सेम फेज वाली लाइट्स मिक्स हो गई, वेव्स, और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई. जैसे क्रेस्ट मिल गई, ट्रफ से मिल गई. एंड सम आर अदर पॉइंट्स वेयर टू डिफरेंट फेज points mix with each other and they form the destructive interference. So when the same phase mix, they form bright light than rest of the medium called constructive interference. And when the light waves of different phase mix with each other, they form the destructive interference. First of all, this interference of light is described experimentally by the Young's double slit experiment. For that, Young's take one source of light and the two slits at the same distance from the source, at the same distance. Then he considered a screen where he observed the different patterns for the interference. और उसने देखा कि दो, जैसे एक सोर्स, हम लाइट नेचर की बात कर रहे हैं, सोर्स ने वेव एमिट की है, एक मान लो क्रेस्ट शो हो रही है, एक ट्रफ है, एक क्रेस्ट है, एक ट्रफ है. जब ये दो सोर्सेस आ गए, S1 S2 स्लिट्स आ गई, तो इसके आगे ये जो हम बोल रहे हैं कि ये क्रेस्ट है और ये ब्लू वाली हम बोल रहे हैं कि ट्रफ है, तो इसके बिल्कुल जो यहाँ सेंटर है, सेंटर, स्क्रीन का सेंटर, where the light waves with the same phase reaches and they form the maximum. Same phase means the two crest or the two trough, they superimpose each other and they form the maxima here. But some other points, say this point, that is, we say that dark fringe, bright fringe, dark fringe, bright fringe. Here when we considering the dark fringe, यहाँ पे एक crest, एक ट्रफ, crest, ट्रफ, crest और ट्रफ सुपरइम्पोज करती हैं एंड और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस को फॉर्म करती हैं. मीन्स वी से एट द मैक्सिमम
where we say the bright fringe formed, and at here when we say the dark fringes, here it is minima or the destructive interference. So when the two light waves superimpose each other, the non-uniform distribution of light form the interference pattern, where the bright fringes are due to the constructive interference, and this is by the destructive interference of light. Now the next one, that is sustained interference. Sustained means permanent interference. So permanent means when the pattern is formed on the screen, जो मैक्सिमे और मिनिमे की पोजीशंस हैं, जो ब्राइट और डार्क की पोजीशंस हैं, वो सस्टेन्ड रहें, उसको हम सस्टेन्ड पैटर्न कहते हैं. तो इसको कंडीशंस क्या है, ये यंग्स ने की कहा कि 2 स्लिट्स चाहिए, सोर्स एक ही चाहिए. अगर वो एक स्लिट को क्लोज कर दे तो ये पैटर्न सारा गायब हो जाएगा. अगर वो एक सोर्स की बजाय 2 सोर्स ले ले फिर भी ये पैटर्न स्टेबल नहीं रहेगा. सो एक सस्टेन्ड पैटर्न बनाने के लिए लाइट सेम वेवलेंथ की हो जो दोनों सोर्स से आ रही हैं, लाइट हम बोल रहे हैं कि सेम एम्पलीट्यूड की हो, और 2 सोर्सेस कंटिन्यूसली लाइट एमिट कर रहे हों और एक दूसरे के क्लोज हों. और सबसे बड़ी एग्जांपल 2 सोर्सेस, एग्जांपल भी नहीं हम कहेंगे कंडीशन, 2 सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए. अब कोहेरेंट क्या है, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेस, जो एक सिंगल सोर्स से बने हों. कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि यंग्स ने एक सोर्स की वेव्स को 2 स्लिट में भेज के उनको 2 सोर्स बना लिया, तो ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं जो एक सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस हों. मींस फॉर गेटिंग द सस्टेन्ड इंटरफियरेंस the 2 sources must be coherent. मीन्स वो एक सिंगल सोर्स से ही बने हों तभी वो कोहेरेंट होंगे. तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 इंडिविजुअल सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं होते. हम यहाँ एक सोर्स के आगे 2 स्लिट लेने की बजाय 2 सोर्स क्यों नहीं ले सकते, जो 2 इंडिविजुअल सोर्सेज हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं होते. एक तो इंडिविजुअल सोर्सेज लाइट वेव्स को कंटिन्यूसली एमिट नहीं करते, जो कि हमारे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या है, कंडीशंस हैं. दूसरा, जो लाइट वेव्स इंडिपेंडेंट सोर्सेज से निकलती हैं वो अपना फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रख पाती, उनका फेज चेंज हो जाता है. कैसे, अब जो एक सोर्स लाइट एमिट करता है उसके जो एटम्स एमिट करते हैं वो जो एक्साइटेड से ग्राउंड में आएंगे तो लाइट एमिट करेंगे. और लाइट एमिशन जो है, जब एमिशन होने के बाद हमने 2 इंडिविजुअल अलग अलग सोर्स ले लिए, स्क्रीन ले ली, वो आपस में मिक्स हो रही हैं. इनिशियली क्योंकि मिलियन बिलियंस एटम्स हैं, सारे तो सारे एक्साइट नहीं करते एक साथ, एक ब्रस्ट की फॉर्म में एक्साइट करते हैं. तो फर्स्ट ब्रस्ट का फेज भी सेम है, सब कुछ सेम है, उन्होंने मिक्स हुए और यहाँ पैटर्न बना दिया, मैक्सिमा बना दिया, डार्क ब्राइट बना दिया. बट ये पैटर्न, ये टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न सिर्फ कितने टाइम के लिए रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ये लाइट एमिट होके मिक्स होके एक पैटर्न बना देती है. अब अगला ब्रस्ट आया, क्योंकि एक ब्रस्ट तो निकल गया, दोनों सोर्स में अलग अलग सोर्स हैं, एक सोर्स है मेरा, एक S2 है, दे आर नॉट द कोहेरेंट, दे आर इंडिविजुअल सोर्सेज. अब जब अगला ब्रस्ट आएगा वो एक इंटरनल फिनोमेना है. जब हमने 2 कंसिडर किए, हमने उनको सारी कंडीशंस दे दी कि वो सस्टेन्ड पैटर्न बनाएंगे. बट अब जब अगला ब्रस्ट आएगा
वो उसका फेज शिफ्ट हो गया, ये पैटर्न स्क्रीन में शिफ्ट हो गया। अब एक और ब्रस्ट आया, नेक्स्ट वाला पैटर्न फिर शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग मीन्स कितनी बार वेव वो पूरा पैटर्न आगे स्क्रीन पे मूव कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल 10 रेज टू पावर 8 टाइम्स का रेसिप्रोकल। अब इतना 10 रेज टू पावर 8 टाइम्स की शिफ्टिंग को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई द टू individual sources cannot form the sustained pattern, or they are not considered as the coherent sources। तो इसीलिए जब भी एक सस्टेन्ड पैटर्न चाहिए तो हमें सोर्स को एक सिंगल से ही बनाना होगा। यंग्स ने इसको वेरीफाई कर दिया कि पैटर्न सस्टेन्ड तब होगा अगर सोर्सेस जो इंटरफियरेंस कर रहे हैं, लाइट वेव्स दे रहे हैं, वो एक सिंगल सोर्स से ही बनेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, हम एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेंगे। मोनोक्रोमैटिक सोर्स S, दो स्लिट्स S1 S2, स्क्रीन सेंटर, यहां मैक्सिमा ही बनना है, और वेव हैं जो प्रोड्यूस होके इंटरफियर करेंगी, और यहां एक P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट मैक्सिमा बनाएगा कि मिनिमा बनाएगा, ये हमने कंडीशंस बनानी है, ये हमारी स्क्रीन है। अब कंडीशंस बनाने के लिए हम वेव कंसिडर करेंगे। मान लो जो S1 सोर्स है उससे जो वेव एमिट हुई, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। जो S2 है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। इसमें एक फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस भी है, फेज डिफरेंस है, यहां से जाने वाली वेव और यहां से जाने वाली वेव का। अब जो वेव्स सेंटर पे जा रही हैं O पे, वो तो सेम फेज सेम पाथ में ही जा रही हैं और मैक्सिमा ही बनाएंगी। अब जो P पे जाएंगी और ये सुपर इम्पोज का प्रिंसिपल लगाएंगी, सो A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे, A2 साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, फिर A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। हमने इसको अरेंज कर लिया। अब ये जो साइन के साथ है ये वैल्यू, इसको हमने सपोज कर लिया कॉस फाई इज, ये साइन के साथ है तो इसको हम लिखेंगे A कॉस थीटा, और जो साइन के साथ है A2 साइन फाई, इसको हम लिखेंगे A साइन थीटा। अब दोनों साइड में स्क्वायर करके हमने क्या करना है, पहले तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, y A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस जो वैल्यू है A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू हो गई। अगर A कॉमन लिख लिया हमने, मान लो A हमने इनमें कॉमन लिख लिया, तो ये जो इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट की, A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बन गई, जो क्या है हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन गई जो हम +1 में पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। अब हमने ये दो इक्वेशन जो हमने अलग लिखी थी, इनको स्क्वायर करके हमने क्या करना है,
ऐड करना है। जब आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे देन व्हाट यू गॉट हियर, आपको क्या मिलेगा? इसको स्क्वायर को ऐड करना, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5, ये a1 a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 2a1 a2 cos 5 प्लस ये भी ऐड कर दो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5, ये दो साइड भी ऐड कर लो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है a2 cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर, ये भी तो प्लस की वैल्यू है, ये भी 1 होगा, ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर 5 भी 1 होगा। देन व्हाट वी गॉट द रिजल्टेंट, a स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5, this we have the resultant amplitude, ये जो है इंटेंसिटी रिजल्टेंट की, यही एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट वेव है जो इन दो को सुपर इम्पोज करने के बाद मिलेगी, तो ये इंटेंसिटी जो हमारी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब आप याद रखेंगे जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इंटेंसिटी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5, इसको हम इंटेंसिटी में भी लिख सकते हैं, दिस इज इंटेंसिटी I1 I2 2I1 I2 cos 5। अभी हमने इसकी रिजल्टेंट वेव को निकाल लिया है। अब हम बताएंगे कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमा बनाएगी कि मिनिमा बनाएगी, तो इसमें वेरिएशन ये तो फिक्स हो गए, एम्पलीट्यूड थोड़ा ना चेंज होंगे, तो चेंज क्या होगा, ये फाई चेंज होगा, ये बताएगा कि वहां मैक्सिमा बनेगा का मिनिमा बनेगा। अब इसको हम आगे कंसिडर करेंगे। चलिए हमारी इक्वेशन आ गई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। अब cos 5 अगर मैक्सिमम है तो वो कंस्ट्रक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है कि वेव्स कंस्ट्रक्ट कर गई हैं, और cos 5 मैक्सिमम हो गया, 1 मैक्सिमम हो गया, कितने कितने एंगल पे, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे एंड सो ऑन। देन फाई क्या बन गया, 2n पाई, मतलब अगर फेज एंगल, और यहाँ n हमारा क्या है, n की वैल्यू हमारी क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन, अगर फेज एंगल 2n पाई मल्टीपल होगा तो ये इंटेंसिटी हमेशा क्या बनाएगी, मैक्सिमा ही बनाएगी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे भाई पाथ का भी तो डिफरेंस है, जो ये वेव थी यहां से यहां तक जाने के लिए इन दोनों का पाथ भी तो अलग अलग है S1 S2 से, तो वो पाथ डिफरेंस कैसे बनाएंगे हम, वो पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा x, क्योंकि जब आप पूरी वेव की बात करते हो, वेवलेंथ लैम्डा की बात करते हो, तो यहां से यहां तक का फेज कितना डिफरेंस होता है 2 पाई का। और मान लो हम x की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट है उसमें x का पाथ डिफरेंस है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। तो अब 2 पाई बाय लैम्डा x 2n पाई और x क्या बन गया n लैम्डा। ये कंडीशंस आ गई हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। यहां भी n हम क्या लेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन लेंगे। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा मीन्स इवन इंटेग्रल मल्टीपल चाहिए।
अब जब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की, तो उसके लिए ये वाला कॉस मिनिमम चाहिए, तभी तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये मिनिमम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, फाई हमारा पाई को 3 पाई को 5 पाई को शो करेगा। देन व्हाट अबाउट द फाई कितना होगा फिर 2n प्लस 1 पाई हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ n 0 1 2 और उसके आगे कुछ होगा। अब पाथ डिफरेंस तो वही होगा, पॉइंट तो हम उन्हीं दो की बात कर रहे हैं कि जे पॉइंट मैक्सिमा बनाएगा कि मिनिमा बनाएगा। तो फिर अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो फिर क्या बनेगा 2 पाई बाय लैम्डा एक्स 2n प्लस 1 पाई। ओके, देन व्हाट द कंडीशंस फॉर destructive interference in terms of path difference 2n plus 1, that is lambda by 2, where n is equal to 0 1 2 and so on. So conditions क्या हो गई for destructive path difference, and this is the phase difference. ये phase difference, ये path difference for constructive interference, और ये phase difference and path difference for destructive interference. अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कंडीशंस में, ये ऑड इंटेग्रल मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस हैं। कोई भी पाथ डिफरेंस दिया हो तो उसके सामने रख के इसको सॉल्व करेंगे। ये फेज में है, ये पाथ में है, कि जो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सो इन दिस वीडियो वी फाइंड द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर वीडियो पसंद हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।